हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमने लास्ट वीडियो में देखा था बहुत से छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ आर इंग्लिश ग्रामर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस चार टाइप के होते हैं एज यू कैन सी: डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इंट्रोगेटिव। ठीक है, अब देखते हैं इन चारों का क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है। So the very first sentence, or the very first type of the sentence is our declarative and assertive sentences. So declarative and assertive sentence मतलब क्या? A simple sentence that says something, like which gives us some information or something normal way, in a normal way. Like Rahul is a good boy. Okay, this is the example of, you can say, declarative sentences. Then the guide was telling the tourist to be back in time. So anything which just gives some information or says something, depicts something, is nothing but our declarative or assertive sentences. The next sentence comes imperative sentences. So imperative sentence means nothing but it's order, request, advice, suggestion. ऐसे टाइप के sentences को हम imperative बोलते हैं, मतलब जिसमें कोई ऑर्डर दे रहा हो, कोई रिक्वेस्ट कर रहा हो, कोई एडवाइस कर रहा हो, तो ऐसे सारे को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज मेंटेन साइलेंस. वी कैन मतलब प्लीज वर्ड होता है रिक्वेस्ट कर, जो रिक्वेस्ट टाइप के सेंटेंस होंगे. देन ऑर्डर मीन्स कंप्लीट योर होमवर्क बाय टुमारो, इट्स एन ऑर्डर फ्रॉम द टीचर, राइट. सो वैसे सेंटेंसेस हो गए. फिर यू शुड ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स, राइट. तो ऐसे obey your elders, right, that is also an order or advice you can say. तो ऐसे सारे sentences को हम imperative sentence बोलते हैं. Now next comes exclamatory sentence. Exclamatory sentence मतलब which expresses some feeling, happiness, sadness, grief, then any type of feeling, excitement, any type of feeling is expressed in this particular sentence. For example, what a lovely child it is. Complimentary, right. Last में exclamatory sentence में we use exclamatory mark, so it becomes easy for us to understand the exclamatory sentence. Then the fourth comes interrogative sentence. Like these are the question type of sentences. मतलब इस sentences में usually questions पूछे जाते हैं. How are you? What are you doing? Why do you believe like that? So these are some examples of interrogative sentences. Now in exam, the types of questions which are asked on this particular topic is like identify the types of sentences, which is the most common one which is asked in the exam. Like sentences will be given and you have to just identify which type of sentence is that. Or to going to an advanced level of this type of questions on this topic, we would say that it can be rewrite the sentence in a particular form. Like for example, सेंटेंस को डिक्लेरेटिव फॉर्म में दिया है, तो मैं उसे इम्पेरेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसे रीराइट करना है सेंटेंस को. तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस में, ऐसे कुछ एग्जांपल्स मैं बताऊंगी कि कैसे रीराइट के क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स वैसे. ओके, सो लेट्स सी दिस एग्जांपल्स. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज डोंट वेयर एक्सपेंसिव ज्वेलरी. We have to rewrite this sentence in assertive form. Now let's understand first what type of question, what type of sentence is the question. Like don't wear expensive jewelry. So it comes as imperative sentence, right. ये जो question है हमारा वो imperative sentence है. अब हमें बोला गया है, हमें instruction दिया गया है कि इस imperative sentence को हमें assertive यानी कि declarative, assertive और declarative एक simple form of sentences में convert करना है, right. तो सिंपल फॉर्म में कैसे करेंगे? विच टेल्स अस समथिंग इंफॉर्मेशन, लाइक डोंट वेयर एक्सपेंसिव ज्वेलरी. सो वी शुड नॉट वेयर एक्सपेंसिव आई एम सॉरी फॉर दिस. We should not wear expensive jewelry.
राइट हमने क्या किया, जो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस था दैट डोंट वेयर एक्सपेंसिव ज्वेलरी, इसको हमने एक सिंपल फॉर्म ऑफ सेंटेंस में कन्वर्ट किया दैट वी शुड नॉट वेयर एक्सपेंसिव ज्वेलरी। वी की जगह पे यू कैन यूज यू ऑल्सो दैट यू शुड नॉट वेयर एक्सपेंसिव ज्वेलरी, राइट। तो एकदम सिंपल फॉर्म ऑफ सेंटेंस में कन्वर्ट किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दे डू नॉट ब्रिंग द कैलेंडर टू द स्कूल। दिस इज अ सिंपल सेंटेंस कि वो लोग कैलेंडर्स नहीं लेके आते हैं स्कूल में। अब इसे हमें इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है, यानी कि क्वेश्चन मार्क में। तो क्वेश्चन मार्क में कन्वर्ट करने से पहले एक चीज हमेशा याद रखना, whenever we are converting any sentence into the interrogative sentence, first we should know what's the verb, like helping verb in it. So इस सेंटेंस में अपना helping verb क्या है, do not, right? तो इस do not को जो helping verb रहता है उसके हेल्प से हम क्वेश्चंस फॉर्म करते हैं। सो क्या रहेगा, देखो डू नॉट, राइट, जो नेगेटिव है सबसे पहले वो पॉजिटिव बन जाएंगे, तो हमारा आ जाएगा डू। ओके, डू नॉट हो गया डू। देन नेक्स्ट क्या है हमारा, जो नाउन या प्रोनाउन जो भी यूज किया हुआ रहेगा वो, सो डू दे, ठीक है। मतलब फर्स्ट सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब था उसको हमने आगे लाया, उसको जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, इफ ऊपर पॉजिटिव है तो उसमें हमें उसको हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, ओके। सो हमारा जो डू नॉट है, जो नेगेटिव वर्ड है उसको हमने डू करके मेंशन किया। देन कम्स आर नाउन और प्रोनाउन, जो भी हमारा रहेगा मेन सब्जेक्ट वो आगे आ गया। फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, लाइक डू दे ब्रिंग, ठीक है, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो भी बचा हुआ है वो कंप्लीट करेंगे। डू दे ब्रिंग द कैलेंडर्स टू द स्कूल। इग्नोर माई हैंड राइटिंग, थोड़ा फास्ट में ऐसे ही हो रहा है, बट हाँ। तो क्या रहेगा, दे डू नॉट ब्रिंग द कैलेंडर्स टू द स्कूल। सो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसको नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव में लिखना है, पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव में लिखना है। देन कम्स आर, जो मेन सब्जेक्ट रहेगा नाउन या प्रोनाउन वो आएगा, एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, डू दे ब्रिंग द कैलेंडर्स टू द स्कूल। सिंपल। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट वॉज अ ब्यूटिफुल साइट। एक सिंपल सेंटेंस दिया, असर्टिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस दिया कि वो बहुत अच्छा ब्यूटिफुल साइट था करके, उसको हमें रिराइट करना है एक्सक्लेमेटरी में। नाउ बिफोर कन्वर्टिंग दिस सेंटेंस वी नीड टू पिन ऑन दिस नोट, कि मतलब नोट क्या कह रहा है कि अगर सिंगुलर रहेगा सेंटेंस तो हमें व्हाट यूज करना है, अगर प्लूरल रहा तो हाउ यूज करना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज अ ब्यूटिफुल साइट। दिस इज अ सिंगुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट। ये सिंगुलर है कि इट वॉज अ ब्यूटिफुल साइट। अगर ये सिंगुलर है तो मैंने क्या बोला था, वील यूज व्हाट, बराबर हम लोग व्हाट यूज करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, इस सेंटेंस का आंसर क्या रहेगा फिर, व्हाट, बराबर। ये जो वॉज है हमने उसको व्हाट से रिप्लेस किया सिंगुलर है फॉर्म में, व्हाट अ ब्यूटीफुल, बराबर। रिप्लेस नहीं किया हमने वॉज को, प्लीज करेक्ट मी, आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ। हम रिप्लेस नहीं करते, बट याद रखना अगर सिंगुलर है तो हम व्हाट यूज करते हैं। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, इतना हो गया, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। फिर ये आएगा इट वॉज एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क, समझा। ये सिंगुलर फॉर्म ऑफ सेंटेंस था, इट वॉज अ ब्यूटीफुल साइट। तो हम उस सिंगुलर को क्या व्हाट से चालू करेंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट वॉज। फॉर अभी इसको और बेटर वे में समझने के लिए मैं एक प्लूरल का भी एग्जाम्पल लूंगी एंड मैं बताऊंगी कि प्लूरल जब आता है तब हम हाउ यूज करके उस सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट्स द प्लूरल फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला एक प्लूरल का एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो प्लूरल का ये एग्जाम्पल देखो क्या बोल रहा है, दिस स्ट्रॉबेरीज आर वेरी डिलीशियस। नाउ प्लूरल है ये हमारा स्ट्रॉबेरीज, बराबर। अब मैंने क्या बोला था, अगर प्लूरल रहेगा तो विल यूज हाउ। तो हमारा सेंटेंस चालू होगा हाउ, ठीक है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, तो हाउ, डिलीशियस, तो क्या आ जाएगा, हाउ
delicious, ठीक है, these वैसे ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता. how delicious this strawberries are. अंडरस्टूड. वेरी डिलीशियस, वेरी हमने हटा दिया क्योंकि वेरी यूज नहीं होता है इसमें, तो उसके जगह पे हमने ये प्लूरल फॉर्म में तो हमने हाउ से स्टार्ट किया, फिर हाउ डिलीशियस जो एडजेक्टिव रहेगा वो आगे आ जाएगा. तो हाउ डिलीशियस दिस स्ट्रॉबेरीज आर. सो दिस वाज इट. आई होप आपको समझ गया है कि क्या है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, और अगर उसको कन्वर्जन आया, उसको रीराइट करने का आया, तो कितने इजी वे में आप लोग उसको रीराइट कर सकते हो. सो जैसे कि मैंने बोला था, टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दे आर फर्स्ट आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस. आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप का सेंटेंस है करके. फिर उसके बाद सेकेंड आता है आपका अरेंज जम्बल्ड वर्ड्स इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस. मतलब बहुत ही जम्बल्ड वे में कुछ क्वेश्चंस रहेगा. फॉर एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो मैं वो एक एग्जांपल भी ले लेती हूँ. दिस इज द टाइप ऑफ द क्वेश्चन जो मैंने बताया था, अनजम्बल्ड वाला, मतलब जम्बल फॉर्म का क्वेश्चन रहेगा. तो क्वेश्चन क्या है, स्पेरिकल द शेप इन अर्थ. पूरा जम्बल्ड फॉर्म ऑफ सेंटेंस दिया है हमें, कुछ भी क्लियर नहीं है, हमें इसे सॉल्व करना है और एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. जैसे कि हम वो जम्बल्ड लेटर्स देखते हैं ना, मेक वर्ड्स फ्रॉम द जम्बल्ड लेटर्स, वैसा सब कुछ. तो वैसा ही है ये भी. तो इसका मीनिंगफुल सेंटेंस क्या बनेगा, द अर्थ इज इन स्पेरिकल शेप. हमने सिंपल फॉर्म ऑफ सेंटेंस में कन्वर्ट किया इसको. अब हमें बताना भी है कि कौन से टाइप ऑफ सेंटेंस है. तो ये कौन सा है, एकदम सिंपल है, लाइक जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन, कॉमन इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें ये सेंटेंस की अर्थ क्या है, स्पेरिकल शेप में है. तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटिव या एसर्टिव सेंटेंसेस. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं. तो मैंने क्या बोला था, फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या रहेगा कि हमें टाइप ऑफ सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है. सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि जम्बल्ड फॉर्म, अनजम्बल्ड फॉर्म में दिया रहेगा, उसको हमें जम्बल करना है, उसे हमें सिंपल फॉर्म में, मतलब उसके सेंटेंस को लिखना है हमें. देन उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हमने प्रीवियसली सॉल्व किया कि हमें रीराइट करना है किसी सेंटेंस के टाइप को. फॉर एग्जांपल अगर एसर्टिव दिया है तो हमें एक्सक्लेमेटरी में या इंपेरेटिव में कन्वर्ट करना है. इंपेरेटिव दिया है तो एसर्टिव में कन्वर्ट करना है या इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है. एक्सक्लेमेटरी दिया है तो एसर्टिव में कन्वर्ट करना है, इंपेरेटिव में कन्वर्ट करना है, या वाइस वर्सा, जो भी है ये सब कुछ. सो ब्रैकेट में यूजुअली आपको मेंशन किया रहेगा कि हाउ यू हैव टू रीराइट दैट पर्टिकुलर सेंटेंस. आपको किस फॉर्म में उस सेंटेंस को बनाना है वो ब्रैकेट में आपको दिया जाएगा. उस हिसाब से आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके प्रॉपरली सेंटेंस फॉर्म करना है. आई होप आपको ये टॉपिक प्रॉपर क्लियर है. इफ़ कुछ भी डाउट है यू कैन कमेंट डाउन बिलो. आई विल मेक श्योर कि आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूँ. एंड आई होप ये वीडियोस आपको हेल्पफुल है. स्टिल इफ़ यू फील कि मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, देन यू please do comment below so that I can make myself better for your better understanding. Till then, thank you. मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगी एक न्यू टॉपिक के साथ.